Hi students, in today's video lecture we are going to study about a very interesting concept that is called as Kirchhoff's rules. Students, in JEE and NEET you are often going to come across problems where you will have to apply Kirchhoff's rules. It is a very interesting topic and if you pay attention you will definitely find it very easy to understand. Let us start with Kirchhoff's rules. Students, as you can see in this diagram, sometimes electrical circuits have large number of resistors and cells connected in a complicated way. This circuit has 5 resistors and 2 cells. So students, in such complicated circuits you are often expected to find out either potential difference or current across any of the resistances or maybe in the cell or such things. You are expected to find out such things. Now students, earlier we have studied about resistance in series, resistance in parallel. We have also studied about cells connected in series or cells connected in parallel. But students, the formulae that we have studied there are not sufficient to solve such complicated circuits. So Kirchhoff has designed 2 rules that would be very helpful to us in solving this kind of problems. Students, something very interesting, let me tell you, when Kirchhoff was in 9th standard, 9th class, he designed this formula. Very interesting, isn't it? So, what are those 2 rules? The 2 rules are junction rule and loop rule. These are the 2 rules which will simplify our circuits. But before I start with these 2 rules, you need to understand 3 terms. Students, these 3 terms are not given in your textbook, directly not explained in your textbook. But if you understand these 3 terms, solving the problems and understanding and applying Kirchhoff's law is going to be very easy for you. What are those 3 terms? The 3 terms that I want you to know are junction, then you have branch and loop. Understand the meaning of these 3 terms. What is a junction? Before I explain what is a junction, students, let me do one thing. Let me name important points in this circuit. This is the same circuit which is given in your textbook. Suppose I name this as point A, B, C, D, E, F. Now, junction is a point. It is a point in the circuit where at least 3 paths, of the circuit should meet. If you consider this point A, you have 3 conductors, 3 wires meeting at this point. One is the wire AB, another is the wire AF and the wire AD. At least 3 path, 3 wires, 3 से ज़्यादा होंगे तो चलेंगे, 3 से कम नहीं होने चाहिए. तो जहाँ एटलीस्ट 3 वायर्स मिलते हैं वो जंक्शन है. तो बच्चों देखो, A जंक्शन है. क्या आप इसमें ढूंढ सकते हो दूसरा कोई जंक्शन? B is not a junction because here you are having only 2 wires meeting at the point. C is also not a junction, but D is a junction because 3 paths are meeting at point D. One is AD, CD and DE. E is not a junction, F is not a junction. So junction is a point where at least 3 paths meet in the circuit. So that was about junction. Then next is branch. What is the meaning of a branch? Any conductor or any path joining 2 junctions. A is one junction, D is one junction. इनको जोड़ने वाला जो path है वो एक branch है. तो AD is one branch. ABCD दूसरा ब्रांच है. AFED तीसरा ब्रांच है. तो ब्रांच ये एक ऐसा कनेक्शन है जो जंक्शन टू जंक्शन होता है. और तीसरा है लूप. लूप एक ऐसा पाथ है जहां पर अगर हम किसी पॉइंट से शुरू करके पूरा सर्कल ट्रेस करके वापस उसी पॉइंट पर आते हैं तो उस पूरे पाथ में कोई पॉइंट रिपीट नहीं होता है. यानी कि अगर मैं ए से शुरू करता हूं और बी पर जाता हूं, सी पर जाता हूं, डी और फाइनली वापस ए पर आ जाता हूं तो ये पूरा एक लूप हो गया. दिस लूप कैन बी कॉल्ड एज ए बी सी डी ए. सो यू हैव loop A, B, C, D, A.
Then you have loop ADEFA. ADEFA. You can also write loop ABCDEFA. ABCDEFA. अब आप ये लूप का नेमिंग चाहे जैसे भी कर लो. Loop is a path along the circuit where the same point is not encountered again. That is the actual definition of a loop. You could name this loop in a different way also. You could have named it as ADCBA. मैंने ABCDA लिखा था, वो ऐसे था. आप लूप को ऐसे जब ट्रेस करते हो तो आप क्लॉकवाइज ट्रेस करते हो, और अगर ऐसे ट्रेस करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया. ADCBA तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया. डजेंट मैटर आप उसको कैसे ट्रेस करते हो. सो दैट इज ऑल अबाउट जंक्शन, ब्रांच एंड लूप. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द किरचॉफ्स रूल्स. स्टूडेंट्स, किरचॉफ्स रूल्स अप्लाई करने के पहले एक बात समझ लो कि जब भी किसी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हमें सिंप्लीफाई करना है और सर्किट में से हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, हमें करंट फाइंड करना है, तो जैसे मैंने बताया सबसे पहले आपको जंक्शन, ब्रांच और लूप की समझ होनी चाहिए. उसके बाद आप रैंडमली हर एक ब्रांच में करंट दे दो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ये जो ब्रांच है ABCD, इस ब्रांच में हमने करंट दे दिया है I1. आपके जैसे मर्जी में आए वो डायरेक्शन दे दो. अगर आपने ये डायरेक्शन दिया तो भी चलेगा. कोई स्टूडेंट ऐसा डायरेक्शन देता है, करंट का डायरेक्शन अगर इंटरचेंज कर देता है और उल्टा डायरेक्शन कर देता है तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तब यहाँ पर भी एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. डजेंट मेक एनी डिफरेंस. लेकिन मैंने जानबूझकर जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही डायरेक्शन रखा है. आप उसको इंटरचेंज कर दोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका आंसर नेगेटिव आएगा. नेगेटिव आएगा तो उसका मीनिंग ये हुआ कि डायरेक्शन उल्टा है. दैट्स इट. बाकी आंसर करेक्ट आएगा. एक ऐसा दिया हमने, तो दूसरा ऐसा दिया है, और तीसरा ऐसे दिया है. एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, पॉइंट ए जो है वहाँ से हमको 3 ब्रांच मिलती है. एक है AB, दूसरा है AD और तीसरा है AF. अगर कोई स्टूडेंट इसमें करंट ऐसे देता है, इसमें ऐसे देता है और इसमें भी ऐसे देता है तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही ब्रांच से सारे करंट्स बाहर निकल रहे हैं. वो कैसे चलेगा? अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट ने करंट्स का डायरेक्शन ऐसे बनाया है तो चलेगा? ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही ब्रांच पे सारे करंट्स मीट भी नहीं कर सकते हैं. एटलीस्ट एक ब्रांच ऐसा होना चाहिए जिसमें डायरेक्शन बाकी सारे ब्रांचेस के कंपैरिजन में उल्टा होना चाहिए. एटलीस्ट एक तो ऐसा होना चाहिए. तो देखो, यहाँ से A से करंट बाहर निकल रहा है, इधर भी बाहर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर A में करंट एंटर हो रहा है. तो ये वाले करंट को हमने I3 बनाया है, इसको I1 बनाया है, इसको I2 बनाया है. अब जंक्शन रूल क्या है? जंक्शन रूल सेज दैट द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन. एकदम सिंपल है. देखो, मैं एक दूसरा सिंपल सा डायग्राम बना दूं. इस तरह के क्वेश्चंस JEE में और नीट में भी आता है स्टूडेंट्स, और बहुत इजी है. देखो, मैंने एक थोड़ा सा जंक्शन ऐसा बनाया है जिसमें एक से ज़्यादा ब्रांचेस है. ये कोई जंक्शन है, सपोज मैं इस जंक्शन को नाम दे दूं P. ये करंट है I1, ये दूसरा करंट है I2, ये करंट है I3, ये करंट है I4 और ये करंट है I5. तो देखो स्टूडेंट्स, I4, I2 और I1 ये करंट्स जो है जंक्शन में एंटर हो रहे हैं, और I3 एंड I5 जंक्शन से बाहर निकल रहे हैं. तो जो बाहर निकलने वाले करंट्स हैं उनका सम I3 प्लस I5 इज इक्वल टू अंदर एंटर होने वाले करंट्स के जितना होगा, यानी कि I2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I4. So this is the sum of the currents leaving the junction. This is the sum of the currents entering the junction. Sum of the currents entering the junction is equal to sum of the currents leaving the junction. That is the junction rule of Kirchhoff's rules. Kirchhoff's के 2 रूल्स है, मैंने आपको बताए थे. एक जंक्शन रूल है, एक लूप रूल है,
तो जंक्शन रूल मैंने आपको समझा दिया. व्हाट इज जंक्शन रूल? इट सेज दैट सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन. दैट इज द जंक्शन रूल. रिमेंबर स्टूडेंट्स वेरी वेल, junction rule is straight away a consequence and application of law of conservation of charge. Please remember this. Junction rule is a consequence of the law of conservation of charges. Well, that was the junction rule. Another rule of the Kirchhoff's rules. Kirchhoff के दो rules है, मैंने आपको junction rule समझाया, और दूसरा rule जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं. दैट इज द लूप रूल. लूप रूल सेज कि अगर आप किसी लूप में किसी एक पॉइंट से शुरू करते हो और पूरा लूप अगर फॉलो करते हो तो उस लूप में जितने एलिमेंट्स आते हैं, रेजिस्टर्स एंड सेल्स, देखो अगर मैं एक लूप लेता हूं ABCDA, तो इस लूप में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमको एक रेजिस्टेंस मिला 30 ओम्स, फिर आगे जाते समय हमको दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरा एक सेल मिला 45 वोल्ट्स, उसका EMF है, फिर एक रेजिस्टेंस है 1 ओम और एक रेजिस्टेंस है 40 ओम्स. अब ये जो 30 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फिर ये सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, ये रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा. ए का पोटेंशियल, आगे बढ़ जाओ बी पर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, इस पॉइंट पर पोटेंशियल और कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया, सी पर कम हो गया, डी पर और कम हो गया, इधर पे और कम कम, ऐसे करते करते ए पर जब वापस आओगे टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 0. सो द लूप रूल सेज दैट द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप along the loop when you come back to the same point is 0. इसका एप्लीकेशन कैसे करने का? तो पहले तो एक बात समझो बच्चों, अगर हमें किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर. V इज इक्वल टू आई आर विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस. तो हम अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस, फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस, फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस सारे ऐड अप कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यू विल गेट इज 0. सो द लूप रूल सेज दैट व्हेन यू मूव अलोंग अ लूप then the total potential drop along the loop is always 0. Students, loop rule is a consequence of law of conservation of energy. ये याद रखने का. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, the algebraic sum, मैं loop rule रिपीट करता हूँ, the algebraic sum of the potential difference across the various resistances and cells in the loop is always 0. Students, loop rule is a consequence of law of conservation of energy. So students, you have two rules in the Kirchhoff's law. One rule is the junction rule, another is the loop rule. The junction rule says that sum of the currents leaving the junction is equal to sum of the currents entering the junction. Loop rule says that the algebraic sum of the changes in potential across the resistances and the cells is always 0. Junction rule is an application of law of conservation of charge, and loop rule is a consequence of law of conservation of energy. Once you understand these two rules, how do we apply these two rules? One simple convention, we call it as convention. Let me explain it to you. As a rule, मैं रिपीट करता हूँ, एज अ रूल, एक नियम बना लो. आपको जो है ना कोई एक लूप पकड़ लेना है, उस लूप को ट्रेस करते करते रास्ते में जितने भी आपको एलिमेंट्स मिलते हैं, रेजिस्टेंसेस, सेल्स, उनके सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस लिख लो, सबको ऐड कर दो. अब जब आप लूप को फॉलो करते हो
और अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, देखो अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मैं करंट की डायरेक्शन में जाता हूँ। अगर मैं इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप को फॉलो करता हूँ तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और मैं ये जो करंट का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैं ए से ऐसे जाता हूँ और करंट के डायरेक्शन में जाता हूँ। तो करंट के डायरेक्शन में जाते समय अक्रॉस द रेजिस्टेंस in the direction of current V across R is negative and opposite direction में V across R is positive। ये याद रखो। यानी कि अगर मैं ऐसे जाता हूँ, इसमें भी क्लॉकवाइज जाता हूँ, तो जब मैं ऐसे आता हूँ तो देखो करंट इस तरफ जा रहा है लेकिन मैं ऐसे आ रहा हूँ। अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ तो जब मैं इस रेजिस्टेंस में से पसार होता हूँ तो इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मैं पॉजिटिव लूँगा, मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी पॉजिटिव लूँगा। और एक बात, सेल में नेगेटिव टू पॉजिटिव जब आप जाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव लेने का। यानी आप जाते समय पहले नेगेटिव टर्मिनल आया फिर पॉजिटिव टर्मिनल आया, तो जब आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हो तो आपको वैल्यू 45 जो है पॉजिटिव लेने की। लेकिन अगर आप उल्टा जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो पहले पॉजिटिव आता है फिर नेगेटिव आता है, तो आपको ये वैल्यू नेगेटिव लेनी है। ऐसे करके आपको एक इक्वेशन बनाने का है। हम कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, चलो, तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं लूप ए बी सी डी ए लेता हूं, लूप ए बी सी डी ए, इस लूप में मैं ए से शुरू करता हूं। करंट कौन सा है? यहां पर पहले ब्रांच जो है ए बी सी डी, इस ब्रांच में करंट जो है I1 है। अब जाते जाते मुझे रास्ते में ये वाला रेजिस्टर मिल गया। अब जब मैं इस रेजिस्टर से पसार करता हूं मैं इसको, तो जो करंट है वो भी उसी डायरेक्शन में है। यानी मैं रेजिस्टर्स में से करंट के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं रिपीट करूँ, जब मैं ए बी बी टू सी जाता हूँ तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है मैं भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेना है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लेंगे 30I माइनस 30I1। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR। R की वैल्यू 30 है और I करंट है I1। चलो, तो ऐसे जाते जाते मुझे ये रेजिस्टेंस मिल गया। फिर आगे आते आते देखो मुझे यहाँ पर एक सेल मिल गया। तो जब मैं ऐसे जा रहा हूँ बी से सी पर आया, सी से डी पर आया, डी से जब मैं ऐसे जाता हूँ तो मुझे एक नेगेटिव टर्मिनल मिलता है। फिर मैं जंप करके पॉजिटिव टर्मिनल में आता हूँ। तो जब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव में आता हूँ तो ये वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, तो हम लिखेंगे +45। इसका पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी हमको पता है 45। चलो, यहाँ से आगे जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस मिल गया। जब मैं ऐसे जा रहा हूँ, देखो करंट भी इसी डायरेक्शन में और मैं भी ऐसे जा रहा हूँ, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज इक्वल टू, अच्छा इसमें करंट कितना है? I3 है, तो I3R1 I3R, और R कितना है? 1 है, तो I3 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि -I3 हो जाएगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी पहले वर्कआउट कर लेते हैं। I3 इंटू 40 हो जाएगा, तो 40I3। अब जब मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो -40I3, और फिर वापस A पर आ गए तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। ये हो जाएगा 30I1, ये हो जाएगा +41I3 इज इक्वल टू 45। इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो मुझे ऐसा एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। हमको इस सर्किट में करंट्स ढूंढने हैं। चलो, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का भी मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख दूं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अच्छा इसमें करंट कौन सा है? इस ब्रांच में करंट है I2। देखो I2 है ना इधर,
ऐसे करंट I2 है तो इसका रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 20I2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1 × I2, सो सिर्फ I2 लिखेंगे हम। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, दूसरा लूप लेता हूं, लूप ADEFA, लूप ADEFA। तो हम A से D पर जाएंगे, तो A से D पर जाते समय मुझे एक रेजिस्टेंस यहाँ मिलता है, एक इधर मिलता है, एक इधर मिलता है। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लेंगे, यानी इस डायरेक्शन में मैं इस वैल्यू को पॉजिटिव लूँगा, तो 40I3 पॉजिटिव है। फिर आगे जाते जाते ये मिल गया, तो 1I3। अब यहाँ पर मैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा हूँ, यानी मैं उल्टा जा रहा हूँ। पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव लेने का, -45। फिर हम ऐसे नीचे आ रहे हैं, तो देखो नीचे भी मैं इस करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊँगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, +20I2। फिर ऐसे जाएंगे हम, तो ये भी करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। देखो करंट ऐसे जा रहा है और मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, +I2। फिर आगे जाते समय यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। सेल में जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो तो माइनस लेने का, नेगेटिव से पॉजिटिव आते हो तो प्लस लेने का, तो ये माइनस हो जाएगा -80। फिर वापस हम A पर आ गए तो 0। हम A पर से शुरू किया था, A पर आ गए तो 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों। तो देखो ये 20I2 + I2, तो 21I2। उसके बाद 40I3 + I3, तो 41I3। ये दोनों आ गए, ये दोनों आ गए। -45 -80 इज -125, उधर ले जाएंगे तो इज इक्वल टू +125। दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट, लेट मी टेक लूप A, B, C, D, E, F, A. So our loop is A, B, C, D, E, F, A. This time I am taking this larger loop. पहले मैंने ये छोटा लूप लिया था, फिर ये बड़ा लूप लिया था, और मैं हर बार क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। तो चलो अभी अगर मैं इस लूप को फॉलो करता हूँ तो हमने सारे रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस तो लिख दिए। आपको हमेशा सबसे पहले सर्किट में जो भी रेजिस्टेंसेस है उनके पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेने चाहिए। अभी ये रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 30, करंट I1 है इसमें, तो 30I1। फिर इसका हमने लिख दिया, इसका लिख दिया, सारे पता है हमको। वैसे ये दो की तो हमको ज़रूरी नहीं पड़ने वाली। A से शुरू किया, B पर गए, कुछ नहीं है। B to C में ये रेजिस्टेंस है और हम करंट की डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव आएगा, -30I1। फिर आगे जाते हैं, C से नीचे D पर आए, कुछ नहीं है। D से E पर आ रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पर करंट ऊपर जा रहा है, हम नीचे आ रहे हैं, तो हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बच्चों ये वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे, सो दिस बिकम्स +20I2। फिर यहाँ से हम ऐसे नेगेटिव उल्टा जा रहे हैं, तो फिर से देखो करंट इस डायरेक्शन में हम ऐसे जा रहे हैं, तो ये वैल्यू भी जो है हम पॉजिटिव लेंगे, सो +I2। यहाँ पर हम पॉजिटिव से नेगेटिव में एंटर हो रहे हैं, तो -80, और वापस A पर आ गए तो 0। सिंप्लीफाई कर देंगे, सो दिस बिकम्स 21I2 - 30I1 इज इक्वल टू 80। दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 3। एंड फाइनली करंट्स को लेकर हमने यहां पर लूप रूल अप्लाई किया। जंक्शन रूल पर अभी तक आए नहीं है, जंक्शन रूल यहां पर अप्लाई कर सकते हैं हम। तो यहां पर देखो I3 इज द करंट एंटरिंग, I1 एंड I2 आर लिविंग, सो I1 + I2। सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग, एक ही करंट एंटर हो रहा है, दो करंट्स लीव कर रहे हैं, सो I1 + I2 इज इक्वल टू I3। आप बोल सकते हो, आप पूछोगे कि सर यहाँ पर ये नहीं अप्लाई कर सकते, कर सकते हैं। देखो यहाँ से जो करंट निकल रहा है I1, वो B में आया, C में आया, D में आया, तो ये करंट I1 है। यहाँ से भी जो करंट निकल रहा है A से, दैट इज I2,
I2। सो डी में जो करंट आ रहा है वो I2 है और I1 बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर बाहर जाने वाला करंट I1 है, I3 है, और एंटर करने वाला करंट I2 है। तो फिर से हमको वही मिलेगा, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो वन मोर इक्वेशन, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। You can use these four equations and solve them. On solving them, you will get the values of I1, I2 and I3. That is how you can find out the currents flowing through the different branches. एक बार आपको currents मिल गया तो आप ये पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढ सकते हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस ढूंढ सकते हो रेजिस्टेंसेस के, और सेल के तो पोटेंशियल डिफरेंस दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन नहीं किया था, टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये डायग्राम दे रखा है, दैट्स इट। लेकिन मैंने स्टूडेंट्स ये पूरा एग्जाम्पल के इक्वेशंस लिख दिए। अब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इनको सॉल्व करो और ये इक्वेशंस में से आप I1, I2 एंड I3 की वैल्यूज ढूंढ निकालो। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स रूल्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोसीड विथ द व्हीटस्टोन ब्रिज, जो किरचॉफ्स रूल का स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन है। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो, व्हीटस्टोन ब्रिज।